Okay. So in the previous class, what we already discussed about the application of the stack. Let's see. In case of the any doubt, you can ask about the application of the stack. सर हाँ वो जो क्वेश्चन दिए थे हाँ वो हाँ वाला निखिल हाँ वो वाला थोड़ा बता दीजिएगा सर. okay okay. So the stack application you discuss what the permutations and these are some application are there: permutation, conversion of infix expression to postfix and prefix, evaluation of the arithmetic expression, function call, recursion to check the validity of the expression with nested parentheses, reversal of string, then conversion of the number system. So these are some real life application of the stack. Sometimes short question also asks what are the application of the stack. So you also write these points. These are some application of the stack. So first we see the permutation. Permutation means arranging the elements. As you know, based on the desired output, input or pop out. If the output is desired, whatever the desired output, in this way we pop out the input. The input sequence is given, we insert the element according to this desired output and then pop out. Then we find what is the stack permutation or the stack output. Already discussed. Similarly, function call we already discussed. Whenever the function is called, then the program counter what? It stores the address into the call stack, and after termination of the program, the address will be pop out. So similarly, we discuss about the arithmetic expression, that is your infix, prefix, and postfix. As you know, if operator is present in between the operands, infix, before the operand it is prefix, and after the operand it is postfix. So these are some precedence rule already discussed. This is the first exponential or power are there. This is the right associativity, and then divide into and modulus. This is the left associativity, and plus minus. This is also left associativity, and parenthesis there. Then evaluate first. Similarly, from this comparison, these are some higher priority. Less than, greater than is higher priority. Then and then or XOR. In the previous class, one student also asked about a confusion about the plus minus. Actually, whatever the operation is there, it follows the left associativity. See, in the mathematics also, I already checked it, all the cases. If it is like this, a minus b plus c, so what happened? First it evaluate this. After that, because these are same priority, minus plus are same priority, so that we follow left to right rule. If it is like this, then also these are same priority, so that we follow the left to right rule. If it is the same priority. So this thing already discussed. Okay. So next the infix and conversion of the infix to postfix and prefix. We discuss some manual cases. Suppose a plus b into c are there. We have to convert into this prefix and postfix. Then a into b divided c. This is prefix and postfix. Similarly, these cases is already discussed in the previous class. These are follow left to right, and if it is a power or exponential operator is there, it is right to left. Okay, so this thing you also discuss. Okay, now Nikhil, which question you ask? सर ये एग्जांपल के नीचे जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन तो हाँ ये सर कौन सा करे? 1 2 1 कर देता हूँ. पहला सर पहला. Okay.
एक्चुअली एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा यूजिंग स्टैक आएगा, बट यू आल्सो क्लियर अबाउट दिस, ये वाला मैनुअली मेथड है, किंतु यू कैन डू इट यूजिंग द स्टैक। क्वेश्चन होगा और स्टैक यूज करके करना है, ये वाला मैं बताऊंगा, तो पहले ये देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, $B into C minus D plus E divide F divide G plus H. So this is your expression. Then this is your infix expression. Okay, we convert this expression G plus H. This is your infix expression. We convert this expression to prefix and postfix. Suppose first we prefix. First we convert into prefix. So what happened? You already know parenthesis is done first. Always parenthesis is done first. So this is the parenthesis equation. Expression is there. So first what happened? This will be convert to plus GH. Now this is your one operand for the next operation. One operand for the next operation. You can do it step by step, but here I am showing you one or two step I completed, but you can do it step by step. First step we can do it, next step another operation. In the next step what happened? Next, which is the highest priority? You can say कौन सा ये highest priority? Dollar है, right? Yes. Then dollar A and B. Okay, so एक ऑपरेंड हो गया अभी, डॉलर A इंटू बे, नेक्स्ट प्लस GH. ओके, मैं लिख देता हूँ, नाले कंफ्यूज हो जाएगा. C minus D plus E divide A. Now this is also one operand and this is also one operand. Okay, so next is your what? Into or divide. Okay, these are same. That means we perform a left to right. Associativity is left to right. So first is into is there. Here dollar $AB is one operand and C is one operand. So here we perform what? Into dollar $AB then C. Now this is a one operand after conversion. Now minus D plus E divide F plus G. Okay, ऐसे मैं अंडरलाइन दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगा. दिस इज यू कैन कंसीडर आज वन ऑपरेंड. तुम पेंसिल में दे सकते हो, एग्जाम में पेंसिल में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? व्हाट हैपेंड? डिवाइड इज ने, हां टेल मी. डिवाइड का प्रेसिडेंस तो मल्टीप्लाई से ज्यादा होता है ना? सेम नो, सेम प्रेसिडेंस. divide and multiply is the same precedence, so that you follow the divide तो चेंज नहीं किए, कन्वर्ट नहीं किए. divide and left to right, but this is your left to right associativity. If it is a multiply or divide are there, see for only the this operator is exponential operator. For the exponential operator it is right associativity, but for the into, divide and modulus, these are same associativity. That means if माने divide और multiply होगा, we follow a left associativity, left to right जाएंगे. Similarly for plus minus also, हेलो क्लास में होगा. Next similarly plus minus also, if plus minus is there, this is also same priority, so we can here proceed from left to right. तो सी हियर इनटू का काम हो गया. अभी नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. लेफ्ट डिवाइड है तो दो डिवाइड है, तो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट कंसीडर करेंगे. इनटू ABC जैसा है वैसे माइनस B प्लस डिवाइड EA. एक डिवाइड हो गया. Now this is one operand. E divide F का हो गया. Now this is one operand. Now divide plus GH. Okay, so this is one operand. This is also one operand. So don't confuse about the operand and operator. Next divide is here.
यहाँ पर है बीच में नेक्स्ट डिवाइड तो सी क्वेश्चन को बेटा so next divide is here now it is into तो रहेगा divide a dollar abc this is one operand minus b plus now see pre है so that divide यहाँ आ जाएगा उसके बाद e a plus gh now this is 1 upon ओके तो ये वाला डिवाइड क्या हुआ प्री है तो इसीलिए ये एक ऑपरेंड दिस इज वन ऑपरेंड सो ये यहाँ आ गया now minus plus are there this is also same priority so we go from left to right that means here is one operand and here is another operand and बीच में operator है so you have to take it minus into dollar a b c d okay ठीक है yes next plus divide EF plus GH. This is a one operand. Now this is another operand. This is operator. Similarly, it go to the first. So finally, your answer is plus minus into divide ABCD. ABCD then double divide है यहाँ पर EF plus sorry EF plus this is very important actually using stack क्वेश्चन पक्का है using stack मगर stack वाला अभी बताऊंगा तुम लोग Clear, sir. plus GH. Okay. So now this is your answer. Prefix. Answer is your plus minus into dollar ABCD double divide EF plus GH. Okay. So please try the postfix. तुम लोग try करो यदि doubt होगा मुझे पूछो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर if you go to the postfix expression for the particular this is your prefix this is your prefix if you go for the postfix it is nothing but sorry a b dollar c into d minus EF divide GH plus divide plus okay so this is your postfix इसी सेम क्वेश्चन को हम स्टाक यूज करके भी करेंगे देन यू आल्सो चेक इट ये हो रहा है कि नहीं ओके क्लियर निखिल Yes, sir. any other student if you any doubt then you ask okay तो देखो इसी को फिर से हम करेंगे इसको इस टाइप का क्वेश्चन को यूजिंग स्टैक तो नाउ इट इज ए मैनुअल कन्वर्शन ऑफ योर इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर एंड आल्सो द एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट और द राइट टू लेफ्ट सो हाँ देन कन्वर्शन
Then conversion of the infix to postfix and prefix. The only role to convert an expression prefix or postfix expression is the operation with the highest precedence are convert fast, and the portion of the expression is treated as a single operand for the further conversion. And the prefix and postfix has no parenthesis which increase the efficiency. This thing already discussed. जो मैनुअली कन्वर्सन में होता है, कन्वर्ट होने के बाद we consider as a single operand for the further conversion. And हमारा जो prefix और postfix expression it has a no parenthesis. यहाँ पर हम no parenthesis so that the efficiency in evaluation. So this thing already discussed. Okay. Next we convert using the stack. So here computer usually evaluate an arithmetic expression in the infix expression in two steps. It converts the infix expression into the postfix expression, then evaluate the postfix expression. Both the steps are performed by means of the stack. देखो कोई भी infix expression है तो कंपाइलर क्या करता है, फर्स्ट क्या करता है, इट कन्वर्ट दिस infix expression to postfix expression और prefix. postfix करता है कि prefix करता है. सपोज समझ लो द कंप्यूटर इज कन्वर्ट infix expression to postfix को कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद क्या करेगा, देन इट इवैल्यूएट दैट postfix expression. जो कन्वर्ट हुआ होगा पर्टिकुलरली postfix expression, then it evaluate that postfix expression, then the result will print. So the both the step, the two steps are the conversion from infix to postfix and evaluate the postfix. ये होता है कैसे, ना by means of the stack, using the stack. Similarly, the infix to it convert to prefix and again it evaluate the prefix expression. This is also possible. Either infix to postfix करेगा and postfix को evaluate करेगा, और infix to prefix करेगा और prefix को evaluate करेगा. Anyone. But the two step is required, and these two steps are done by means of the stack. So let's discuss the first step, convert the infix to postfix. एक infix expression है, postfix कैसे बनाना है. Already you know manually. Now we can do using the stack. Actually some rules are there. Let's see. Then an algorithm also there. I'm giving you also the algorithm. Okay. What are the rules? See here. अभी देखो, suppose a input is given in the form of the what infix expression. So any expression contain what? It have infix में opening parenthesis हो सकता है. If you scan this expression or scan each character of the expression, then what are you find? Either it is opening parenthesis हो सकता है, either it is closing parenthesis. Next it is operand हो सकता है. Next it is operator हो सकता है. 4 type of symbol we have to find. Whenever you scan a infix expression, you have to find 4 type of symbol. Either it is opening bracket, either it is closing bracket, either it is operand, either it is operator. Okay, any other things are there? No, only these 4 things are there. Next, then whenever you search or scan this infix expression, suppose the infix expression is like this, a into b plus c, like this, and suppose minus b plus c, any expression is there, suppose example. So what happen, we find opening bracket, closing bracket, then a b c d e are what operand, into plus minus plus are what operator. So these 4 things are there in a infix expression. Here what happened, we scan this expression from left to right. इस infix expression को हम scan करेंगे कैसे, left to right, माने each character को scan करेंगे from left to right. Okay, अच्छी तरह से समझो, each character को हम scan करेंगे left to right. It contains 4 types of character. Then we scan each character from left to right scan करेंगे.
Okay. Then the case one is if it is opening bracket, then push into the stack. Okay, push into stack. If it is opening bracket, then push into the stack. Next, if it is closing bracket, यहाँ पर क्या करेंगे ना, repeatedly pop from the stack and add it to the postfix until the top element of the stack is equal to opening bracket. See here written, here also written, see. Opening bracket, push into the stack. If it is closing bracket, repeatedly pop from the stack and add it to the postfix until the top element stack is equal to that. What is that means? मतलब सी ओपनिंग ब्रैकेट आया डायरेक्टली पुश किए, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो तब हम क्या करेंगे ना, रिपीटेडली पॉप करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट एंड ऐड इट टू द पोस्ट पिक में ऐड करेंगे until the top element of the stack is equal to opening bracket. जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता हम पॉप करके पोस्ट पिक से ऐड करते जाएंगे, स्टैक से पॉप करेंगे एंड पोस्ट पिक को ऐड करेंगे जब तक कि एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाए. ओके, सी दिस टू कंडीशन इज ओवर. देखो ये समरी कहीं पर नहीं है. ओके, ये मैंने बनाकर तुमने दे रहा हूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली डायरेक्ट इंप्लीमेंट मैंने एल्गोरिथम है तो उसमें समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. दैट्स व्हाई आई एम इजीली गिविंग दैट समरी. Okay, so if it is opening, push into the stack. If it is closing, repeatedly pop from the stack and add into the postfix until the top element of the stack is equal to opening. So next third is if it is operand, add into the postfix. Directly add करेंगे postfix को. If it is operand, directly add into the postfix. Clear? If it is operand means यहाँ पर क्या करेंगे, पॉप करेंगे जब तक कि until ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाए, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे पोस्ट फिक्स पे. देन इफ इट इज ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब ए बी सी डी ई आर द ऑपरेंड्स. A, B, C, D are the operand. If it is operand, add into the postfix. Here directly add into the postfix. पोस्ट में डायरेक्टली ऐड करेंगे. नेक्स्ट लास्ट इज if it is a operator. Operator means into plus if it is a operator. Then what happens? See, if it is a operator, compare the top element precedence. Operator precedence, you know, precedence is given. Then we compare whatever the top element. स्टाक का टॉप एलिमेंट का प्रेसिडेंस क्या है. इफ इट इज हायर और इक्वल, देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड इनटू द पोस्टफिक्स until the precedence of the top element of the stack is higher or equal to the scan operator and push the operator into the stack. यहाँ पर क्या होगा ना, कंपेयर द टॉप एलिमेंट प्रेसिडेंस. ओके, टॉप एलिमेंट्स जो स्टैक में है उसका प्रेसिडेंस से मैच करेंगे. इफ इट इज हायर और इक्वल, हायर होगा और इक्वल होगा, देन रिपीटेडली पॉप करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, क्या ऑपरेटर को पॉप करेंगे एंड ऐड इनटू द पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स में ऐड होगा until the precedence of the top element is higher or equal to the scan operator, जब तक कि प्रेसिडेंस हायर और इक्वल नहीं, एंड पुश द ऑपरेटर इनटू द स्टैक. लास्ट में ऑपरेटर को पुश कर देंगे. ओके, सो द लास्ट वाला जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तुम लोग अंडरस्टैंड, थोड़ा मुझे पता है नहीं कर पाओगे, पर बाकी सब इजी है. ओके, एनी डाउट यू कैन टेल मी स्टूडेंट. एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, हाँ एग्जाम्पल तो कर दूंगा, ठीक है. खाली जस्ट याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर. यदि तुम्हें ये ब्रैकेट आया, पुश करेंगे स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट. यदि तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट आया, क्या करेंगे ना, पॉप करेंगे स्टैक. कब तक ना, जब तक तुम्हारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता. एंड यदि ऑपरेंड आ रहा है, ऐड इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, डायरेक्टली पोस्टफिक्स में ऐड करेंगे. एंड ऑपरेटर आएगा तो कंपेयर करेंगे किससे ना, टॉप एलिमेंट के प्रेसिडेंस से कंपेयर करेंगे. ओके, सो प्लीज फास्ट रीड इट. आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड, प्लीज रीड इट. थोड़ा याद कर लो, एग्जाम्पल करने में इजी होगा.
Okay. So let's see one example. इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो डिफिकल्ट होगा. देखो सी, वन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज गिवन. I solve it. All of you please see here. Concentrate. If any doubt, please tell me. Our infix expression is what? A plus 1 minute. Infix expression is A plus B into C minus D. A plus B में ब्रैकेट है, C minus D में ब्रैकेट है. तो your infix expression is here A plus B into C minus D. Okay. Bracket है. Okay. A plus B into C minus D. This is your infix expression. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है? सी 3 कॉलम करेंगे हम. वन इज सिंबल स्कैन. ओके, यहाँ पर देख लो, हर चीज लिख नहीं सकता हूँ. फर्स्ट कॉलम इज सिंबल स्कैन, नेक्स्ट इज स्टार, नेक्स्ट इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन? 3 कॉलम आते हैं, सिंबल स्कैन, स्टार एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. Symbol scan, then next is your start, next is your postfix expression. So initially क्या है? Initially हमारा stack is empty है. Stack is empty. Similarly postfix expression is empty initially. Stack empty मतलब top equal to -1 and postfix expression is empty. Next, we scan the infix expression symbol. Scan the infix expression symbol. Infix expression is your A plus B into C minus D. ये है हमारा infix expression. तो हम स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स लेफ्ट फर्स्ट कौन सा सिंबल आ रहा है? ओपनिंग ब्रैकेट. ओके, आई एम ऑलरेडी टेलिंग इफ ओपनिंग ब्रैकेट डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक, तो स्टैक में पुश हो गया. Here empty. Postfix is empty. Next. Okay. Next, ये वाला हो गया. Next is A will become. So what is A? A is the operand. Then what I am telling? If A is the operand, then directly add into the postfix. For operand directly add into the postfix. Postfix में add हो जाएगा डायरेक्टली. और ये जैसे कि वैसे है, स्टार कंटेन इज ओनली ओपनिंग ब्रैकेट. क्लियर स्टूडेंट? क्लियर और नॉट? ये 2 स्टेप समझ में आया और नहीं? Yes sir. हाँ ये का सर. हाँ टेल कैसे मी. वो हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? ए का जो सर ये स्टैक है वो ब्रैकेट. ये ब्रैकेट सिंबल स्टैक में हम पुश करेंगे. ये ब्रैकेट सिंबल, ब्रैकेट है, कैरेक्टर है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट. यस सर. ए का पोस्टफिक्स जो है वो ए हो जाएगा, बट स्टैक में वो ब्रैकेट कैसे होगा? स्टैक में ब्रैकेट पुश करेगा. जब हम सर्च करें सिंबल को, इफ वी फाइंड ए ओपनिंग ब्रैकेट देन वी कैन पुश इट टू स्टैक. ओके, यदि हम फाइंड कर रहे हैं एनी ओपनिंग ब्रैकेट, वी हैव टू पुश इनटू द स्टैक. स्टैक में पुश कर दिए. और नेक्स्ट जब एक ऑपरेंड आया, स्टैक को चेंज नहीं होगा. स्टैक को कोई चेंज नहीं होगा. स्टैक में जो है वही होगा. हम ए को ऐड कर देंगे पोस्टफिक्स में. क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट सिंबल इज ऑपरेटर. ओके, ऑपरेटर. तो मैंने यहाँ क्या रूल दिखाया था, देखो.
पुश इनटू द स्टैक, ये वाला ऑपरेंड ऐड इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जब ऑपरेंड आया, ऑपरेटर आया, कंपेयर द टॉप एलिमेंट प्रेसिडेंस, कंपेयर करेंगे टॉप एलिमेंट के प्रेसिडेंस के साथ। तो देखो यहां पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, यदि कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पुश कर देंगे। यदि कोई ऑपरेटर होता उसके बाद कंपेयर करते और क्या रिजल्ट होता वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। अभी क्या है, यहाँ पर नो ऑपरेटर इज देयर, सो दैट व्हाट हैपेन, वी डायरेक्टली ऐड इनटू द स्टैक, डायरेक्टली ऐड इनटू द स्टैक द ऑपरेटर। नेक्स्ट द पोस्टफिक्स इज सेम, ए है, ए रहेगा। नेक्स्ट बी आ रहा है, प्लस खत्म हो गया, देन बी आया, तो बी जब आ रहा है, दिस इज ए ऑपरेंड, दैट मींस डायरेक्टली इनटू द पोस्टफिक्स, डायरेक्टली पोस्टफिक्स को जाएगा। तो यह स्टैक कंटेंट कुछ चेंज नहीं होगा। देन यहां पर पोस्टफिक्स में ए है, वी हैव टू ऐड द बी, लेफ्ट टू राइट ऐड करेंगे, लेफ्ट टू राइट ऐड किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, मैंने क्या बोला था यहां पर, सी repeatedly pop from the stack and add into the postfix until the top element of the stack equal to opening bracket। यहां पर हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे जब तक कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, और जो एलिमेंट हमको मिल रहा है उसको हम ऐड कर देंगे पोस्टफिक्स में, यदि हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। सो हियर क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पॉप करेंगे, तो स्टैक में एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट पॉप हो गया, इसको कहां पर ऐड करेंगे, पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे। We have to repeatedly pop up to which we find the opening bracket, up to which we find the opening bracket। तो यहां पर ओपनिंग ब्रैकेट तक हम पॉप कर दिए, नाउ इट इज एम्प्टी हो गया, स्टैक अभी एम्प्टी हो गया। ओके, स्टैक अभी एम्प्टी हो गया। अप टू विच क्लियर, आ रहा है समझ में? नहीं? यस सर, यस सर। सो नेक्स्ट सी, सेम चीज, कॉलम नहीं कर रहा हूं, तो पहला कॉलम है स्कैन, नेक्स्ट कॉलम है स्टैक, नेक्स्ट कॉलम है तुम्हारा क्या, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो अप टू हमारे यहां तक खत्म हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट इज द इनटू, इनटू सिंबल आया, तो इनटू सिंबल जब आया तो अकॉर्डिंग टू द रूल हिसाब से क्या है, इट कंपेयर विद द ऑपरेटर इन द स्टैक, बट स्टैक हमारा एम्प्टी है। यदि एम्प्टी है हम सिमिलरली खाली पुश कर देंगे, कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है स्टैक में, इसीलिए हम सिंपल पुश करते हैं। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कुछ चेंज नहीं, दैट इज ए बी प्लस, पोस्टफिक्स में कुछ चेंज नहीं। नेक्स्ट आ गया फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, सेम रूल, ओपनिंग ब्रैकेट डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक, डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक। स्टैक में ऑलरेडी इनटू था, मल्टीप्लिकेशन था, उसके बाद हम डायरेक्टली ओपनिंग ब्रैकेट को पुश किए। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज सेम, दैट इज ए बी प्लस। नेक्स्ट कौन सा आया, सी आ रहा है। नेक्स्ट हमारा सी आ रहा है। सी क्या है ना, सी इज योर ऑपरेंड। इफ ऑपरेंड आ रहा है डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्टफिक्स, दैट मींस स्टैक कुछ चेंज नहीं होगा, स्टैक में है मल्टीप्लिकेशन और ओपनिंग ब्रैकेट, एंड हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे सी को, ए बी प्लस सी, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट माइनस आ रहा है अभी। देन रूल क्या कह रहा है, देन कंपेयर द ऑपरेटर इनटू द व्हाट, इनटू द स्टैक, बट हियर सी one into are there, another bracket is there। तो यहां पर क्या है, हम ब्रैकेट के बाहर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसके लेफ्ट साइड कंपेयर नहीं कर सकते। यदि राइट साइड कुछ ऑपरेटर होता उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, मगर कोई ऑपरेटर नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स इट सिंपली पुश। फॉर ऑपरेटर इट सिंपली पुश। ब्रैकेट है और ब्रैकेट के लेफ्ट साइड है, ब्रैकेट के राइट साइड कुछ नहीं है, मैंने टॉप एलिमेंट ब्रैकेट है, हम टॉप एलिमेंट को देखेंगे। टॉप एलिमेंट यदि एक ऑपरेटर होगा उसको कंपेयर करेंगे, बट टॉप एलिमेंट इज ब्रैकेट, तो कंपेयर यदि नहीं हो रहा है डायरेक्टली स्टैक में ऐड कर दिए। नेक्स्ट इट इज ए बी प्लस सी, एज लाइक प्रीवियस, चेंज कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कौन आ रहा है, डी आ रहा है।
यदि डी आ रहा है, डी इज ऑल्सो ए ऑपरेंड. ऑपरेंड मीन्स डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्टफिक्स. दैट मीन्स स्टैक कुछ नहीं चेंज होगा. स्टैक में मल्टीप्लिकेशन है, ओपनिंग ब्रैकेट है, माइनस है. नाउ हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड क्या किए, ए बी प्लस सी डी, डी को डायरेक्टली ऐड कर दिया. नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट इज अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट. तो क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या होगा, मैंने बोला था पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक until you find the opening bracket. Pop the element of the stack until you find the opening bracket. So here हम pop करेंगे C up to the opening bracket means एक ही एलिमेंट है, that is minus. So माइनस को पॉप करेंगे और क्या करेंगे, ऐड इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो हम ऐड क्या करिए, ए बी प्लस सी डी माइनस, माइनस को पॉप करके ऐड करके अप टू द ओपनिंग ब्रैकेट तक हमारा पॉप हो जाएगा. दैट मीन्स स्टैक में नाउ खाली मल्टीप्लिकेशन है, स्टैक में नाउ मल्टीप्लिकेशन है. क्लियर और एनी डाउट, टेल मी. नाउ स्टैक में मल्टीप्लिकेशन है. हाँ, एनी डाउट यू कैन आस्क. सर हाँ हाँ और ऑपरेटर रहेगा तो कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ करूंगा, वो वाला और एक एग्जांपल करूंगा, मैंने ये हो जाएगा, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा. अभी ये वाला समझो, जो हो रहा है समझ में आ रहा है तो. हाँ सर. ओके, इसमें यदि डाउट है पूछो, यदि और ऑपरेटर है कैसे होगा मैं नेक्स्ट एग्जांपल में करूंगा. ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट, नाउ दिस इज तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट. जब आया हम पॉप कर दिए, स्टैक में खाली मल्टीप्लिकेशन रहा और हमारा पोस्टफिक्स है ए बी प्लस सी डी माइनस अप टू यहाँ तक है. नेक्स्ट क्या है, देखो एलिमेंट अभी खत्म हो गया, हम लेफ्ट टू राइट तक जा रहे हैं. ऑल द एलिमेंट आर स्कैन, अभी ऑल द एलिमेंट आर कंप्लीटेड. तो जब ऑल द एलिमेंट आर कंप्लीटेड, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी आर परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन ऑफ द स्टैक. स्टैक में पॉप करेंगे और जो भी एलिमेंट है उसको पोस्टफिक्स में सिंपली ऐड कर देंगे. लास्ट में यदि यहाँ पर कुछ नहीं है, स्कैन करने के लिए कुछ नहीं है, हम पॉप करेंगे स्टैक में और जो भी एलिमेंट है वी कैन डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्टफिक्स. तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी प्लस सी टी माइनस इनटू. नाउ स्टैक इज एम्प्टी. स्टैक अभी एम्प्टी हो गया, हमारा जो लास्ट एलिमेंट था हम पॉप किए और उसको डाल दिए पोस्टफिक्स में. नाउ इट इज योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन. Okay, using stack, this is your postfix expression of this particular infix expression using stack. Okay, so same thing I am also done here, each and every step. This is a very small example. This example clear or not? Yes sir. Okay, तो next example में समझ में नहीं आएगा. यदि ये क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ. क्लियर तो हाँ, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. एक्चुअली क्या है, यहाँ पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल है, ये तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ. जो वाला अभी क्वेश्चन पूछा था किसी ने, निखिल ने पूछा था, मैनुअली हम कन्वर्ट किए थे, अभी इसको स्टैक थ्रू में करेंगे. देखो हाँ, उसको करने से ठीक होगा. हाँ समझ में, ठीक है. वो वाला था लाइक दिस, डॉलर बी इंटू सी माइनस टी प्लस ई डिवाइड. यहाँ पर थोड़ा हमारा काम नहीं कर रहा है. एच डिवाइड जी प्लस एच. ओके, सो दिस इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन.
इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या, पोस्टफिक्स में यूजिंग स्टार। कैसे करेंगे, हम तीन कॉलम करेंगे। वन इज सिंबल स्कैन, फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट इज द कंटेंट ऑफ द स्टाक, स्टाक में क्या है हमारा कंटेंट ऑफ द स्टाक, ऑल थिंग्स आर लेफ्ट टू राइट। देन हियर द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये भी हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इनिशियली व्हाट, इनिशियली योर स्टाक इज एम्प्टी and postfix expression also empty. Initially it is empty and postfix expression is also empty. Okay, so first symbol C, A will come. If A will come, तो A क्या है, A हमारा it is a operand. So for the A operand we directly go into the what, into the postfix expression. हम डायरेक्टली पोस्टफिक्स में ऐड करती। ओके, तो दो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो प्लीज सी इट, आई एम अगेन डूइंग द एग्जांपल। ए आया, ए इज ए ऑपरेंड, ऑपरेंड के लिए क्या है, हम डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्टफिक्स। हियर नाउ स्टैक इज एम्प्टी, अभी तक एम्प्टी है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, हमारा डॉलर आया, डॉलर मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। If it is a operator, what happen? We compare the top element, मगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली पुश करेंगे। कंपेयर करने के बाद पुश भी करता है, देखो यहाँ पर लिखा है भी, compare the top element higher or equal, then repeatedly pop from the stack and add into the postfix until the precedence of the top element stack is higher or equal to the scan operator, then push the operator into the stack. Last statement, push the operator into the stack. ओके, सो हमने पुश कर दिया। नाउ पोस्टफिक्स इज सेम, पोस्टफिक्स इज द सेम। नेक्स्ट कौन आया, बी आया, तो बी इज ऑपरेंड, दैट मींस वी डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्टफिक्स। तो स्टैक में ऑलरेडी हमारा डॉलर है तो हम बी को ऐड किए कहां पर, ना पोस्टफिक्स पर। क्लियर, नाउ सी दिस इज योर केस, फोर्थ केस, हियर अप्लाई। नेक्स्ट ऑपरेटर आया इज द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। सो व्हेनेवर द मल्टीप्लिकेशन केम वी कंपेयर द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो हियर टॉप एलिमेंट इज व्हाट, हियर डॉलर, एंड मल्टीप्लिकेशन हमारा आया, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। ओके, देन हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। इफ द टॉप एलिमेंट इज हायर देन और आल्सो इक्वल, if it is higher than or also equal, okay, precedence, if the precedence of this top element is higher than and equal, then pop that element and add into the postfix. Okay, postfix में हमारा a b है, okay, a है and b है, a ऑलरेडी था, b ऐड हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर, if it is higher than equal to, then what, pop the element and add into the postfix. So here see, a b ऑलरेडी था तो डॉलर इज हायर देन द मल्टीप्लिकेशन, सो हम पॉप किए और ऐड कर दिए पोस्टफिक्स में। नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस इनटू को पुश कर देंगे स्टैक में, इनटू को पुश कर दिए स्टैक। अभी बोलो जो समझ में आया नहीं, लोअर आया, हाँ, एनी क्वेश्चन, लोअर आया तो कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली पुश होगा, है ना। इफ इट इज हायर देन इक्वल टू, देन पॉप एंड ऐड इट। यदि लोअर आ रहा है देन पॉप नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। ओके, इसमें है, इसमें कंडीशन भी है, इसी एग्जांपल में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, रिप्लाई? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इनटू के बाद कौन आ रहा है, सी। जो सी आ रहा है तो सी इज ए व्हाट, इट इज ए ऑपरेंड, सो डायरेक्टली हम पोस्टफिक्स में ऐड करेंगे, ए बी डॉलर सी, डायरेक्टली पोस्टफिक्स में ऐड कर दिए। अभी देखो फिर से आया माइनस, माइनस इज व्हाट, इट इज ऑपरेटर, सो यहां पर क्या करेंगे, टॉप में हमारा मल्टीप्लिकेशन है, हमें माइनस आया, तो इफ यू कंपेयर दिस, तो मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस द प्रेसिडेंस, तो व्हाट हैपन, हम पॉप करेंगे, ऐड करेंगे पोस्टफिक्स में।
into को पॉप किए एंड ऐड किए इन द पोस्ट फिक्स एंड दैट ऑपरेटर को स्टैक में Sir. पुश करेंगे। हाँ हाँ टेल मी। सर ब्रैकेट का सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस हाई रहता है ना, तो ब्रैकेट हाँ। ना पहले सॉल्व होगा। ब्रैकेट में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस आता है, मगर क्या है ना, जब ऑपरेटर के केस में आता है तो ऑपरेटर हम चेक करें यहाँ पर। ओके, तुम मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, मैनुअली जब हम कर रहे हैं तो ब्रैकेट में पहला करेंगे, बट इन दिस केस में क्या है, तुम्हारा ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये जो ए बी प्लस सी डी है, ये ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हम स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट, यदि ब्रैकेट आया उसके बाद ब्रैकेट के हिसाब से काम करेंगे। मैंने वो वाला प्रीवियस वाला किया ना, सपोज एक ब्रैकेट आ रहा है तुम्हारा सी, यदि एक ब्रैकेट आ रहा सर है तो ये अगर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके उसके बाद फिर बाकी सब सॉल्व करेंगे तो आंसर में कोई चेंज तो नहीं आएगा ना? नहीं, ये वाला स्टार्ट के लिए ऐसे लेफ्ट टू राइट ही जाना पड़ेगा। जब मैनुअली करोगे, जैसे मैंने बताया था, ब्रैकेट करके जाना पड़ेगा, मगर जैसे ये फॉलो कर रहे हो स्टार्ट, तो हम लेफ्ट टू राइट ही फॉलो कर रहे हैं। देखो, यदि ब्रैकेट आता है वो क्या करता है, एक सील कर देता है। मैंने सपोज एक ब्रैकेट आया तो उसके मैंने पीछे जो भी एलिमेंट है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सील कर देता है। उसके बाद में जो एलिमेंट रहेगा वो उसको कंसीडर करेगा। सिर्फ उनके बाद सपोज क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, what happen only that portion will be considered, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नो चेंजेस, मैंने सेम रिजल्ट आएगा। तुम मैनुअली करके देखो ब्रैकेट और ऐसे सेम रिजल्ट आएगा। ओके, अप टू दिस नाउ माइनस आ गया था, माइनस माइनस हो गया, इनटू आ गया। ओके, तो नेक्स्ट इज डी। डी आया, so D is also operand, so that what happen, we directly add into the postfix A B $C into D, A B $C into D. Now see, okay, so 3 कॉलम है, स्कैन सिंबल, स्टैक एंड पोस्टफिक्स, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद D के बाद क्या है, प्लस आया। ओके, नाउ इज इंटरेस्टिंग, नाउ सी माइनस ऑलरेडी है और अभी प्लस आया, देन व्हेनेवर यू कंपेयर दिस, इट इज एक्चुअली प्रेसिडेंस इज इक्वल, अगेन वी पॉप, इक्वल है फिर भी पॉप करेंगे और पॉप करके पोस्टफिक्स में डालेंगे। ए बी $C into D, देन माइनस ए बी $C into D माइनस, तो यहां पर क्या होगा, प्लस को पुश कर देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, ई आ रहा है, ई आया तो ई को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, पोस्टफिक्स में डायरेक्टली ऐड करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट, इट इज ऑपरेंड, ऑपरेंड को डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्टफिक्स डी माइनस ई। ओके, डायरेक्टली ऐड किया। नेक्स्ट इज डिवाइड। हाँ, अभी जिससे लोअर केस में डाउट था, सी हियर, नेक्स्ट इज डिवाइड। अभी जब डिवाइड आया, वी हैव टू अगेन व्हाट, कंपेयर विद द व्हाट, द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक। सो टॉप ऑफ द स्टैक में प्लस है, ऑलरेडी प्लस है, अभी डिवाइड आया, अब जब भी कंपेयर करेंगे, इट इज एक्चुअली लेस दैन, द प्रेसिडेंट इज लेस, तो हियर पॉप ऑपरेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई पॉप ऑपरेशन नहीं होगा। क्या होगा, डायरेक्टली ऐड इनटू द स्टैक, डायरेक्टली ऐड इनटू द स्टैक। यदि डिवाइड से हायर प्रेसिडेंस होता, मतलब क्या तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता, या मल्टीप्लिकेशन भी होता, ऑल्सो डिवाइड भी होता, इस केस में पॉप होकर पोस्टफिक्स में ऐड होता। ओके, सो हियर व्हाट हैपेन, ये प्रेसिडेंस लेस है टॉप एलिमेंट का, सो दैट वी हैव टू डायरेक्टली पुश इनटू द स्टैक, एंड ये कंटेंट्स नहीं चेंज होगा, स्टैक का कंटेंट्स इज सेम, जो था वही रहेगा, C into D minus E. Next, F आया, F is what? It is operand. Again, we have to add into what? Postfix. Postfix में add करेंगे A B $C into D minus E F minus E F. अभी देखो, इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस और नॉट? यदि किसका डाउट है बताओ, क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। सर फिर से बता दीजिए वो ई और प्लस।
ई और प्लस तो अच्छा ठीक है, ये वाला हाँ सर। हाँ प्रवीण, ई वाला तो ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ से प्लस, अभी प्लस तक समझ में आया प्रवीण? यस हेलो, सर। प्लस जब आ रहा है क्या हुआ, प्लस माइनस है, माइनस इज इक्वल टू द, माने प्रेसिडेंस इक्वल है तो इसीलिए माइनस आ गया पोस्ट फिक्स को और प्लस रह गया। और अभी ई से बताता हूँ, जिस चीज को फिर से डाउट है प्लीज सी इट। और इफ यू देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक और नेट से कोई भी क्वेश्चन उठाओ कि कोई भी एक्सप्रेशन आप से मन से भी लिख सकते हो, मन से लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हाँ, प्रवीण आस्क्स व्हाट ई, सो ई इज व्हाट, ई इज ए व्हाट, इट इज ए ऑपरेंड। यदि ऑपरेंड आ रहा है तो स्टार्ट में कुछ चेंजेस नहीं, हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, नहीं डायरेक्टली कहां पर, पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे minus e. It is a operand, so stack will not changes. What happen, we just add into the postfix. Clear? Next क्या आया ना, हमारा divide आया। जब divide आया, what happen, it is a operator. Then if it is a operator, what happen, we compare with the top element. Stack का top element से compare करेंगे। Now stack top element is the plus. हमारे पास divide आया है। ओके, स्टार्ट का टॉप एलिमेंट प्लस है, हमारे पास डिवाइड है। इफ यू कंपेयर द प्रेसिडेंस, द प्लस इज लेस प्रेसिडेंस देन द डिवाइड। एंड रूल क्या कह रहा है, यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल है देन हम पॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे, बट इट इज ए लेस प्रेसिडेंस, सो दैट हियर पॉप ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म। कोई भी पॉप ऑपरेशन नहीं होगा, हम डायरेक्टली स्टैक में ऐड कर देंगे बिकॉज इट इज ए लेस। हम डायरेक्टली स्टैक में ऐड कर दिए एंड पोस्ट फिक्स कोई चेंजेस नहीं, इंटू डी माइनस डी। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एफ है। तो एफ यदि आ रहा है सी, इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो ए ऑपरेंड, सो डायरेक्टली ऐड इनटू द पोस्ट फिक्स। ओके, C into D minus E directly add it to the postfix। समझ में आया प्रवीण? यस सर। Okay, so next see, next interesting, if it is again com, a divide symbol is com again, so now see which is the top element here, again it is a divide, divide is there, again top element is divide, so what happen, whenever you compare two divide, it is the precedence is equal। रूल क्या कह रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल, सो क्या करेंगे, पॉप करेंगे और ऐड करेंगे पोस्ट फिक्स में। तो हम एक डिवाइड को पॉप किए एंड पोस्ट फिक्स में ऐड किए। क्लियर? सी, हमारे पास डिवाइड है, जब डिवाइड आया हम टॉप एलिमेंट के साथ कंपेयर किए, टॉप में डिवाइड है, देन टॉप एलिमेंट इज प्रेसिडेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस कान एलिमेंट, सो दैट वी पॉप द एलिमेंट एंड ऐड इनटू द पोस्टफिक्स। सिमिलरली प्लस के साथ कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट टॉप एलिमेंट इज द प्लस, सो व्हेनेवर यू कंपेयर विद द प्लस एंड डिवाइड, देन व्हाट हैपन, प्लस इज लेस देन, प्रेसिडेंस हायर नहीं है, प्रेसिडेंस लेस है, तो इसको पॉप में ही करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्टली अगेन पुश इनटू द स्टैक, प्लस है, डिवाइड अगेन पुश हो गया स्टैक, एक डिवाइड चला गया पोस्ट फिक्स में। क्लियर और एनी डाउट टेल मी? इस केस में डाउट है? ओके, जब डिवाइड आया, एक डिवाइड था इक्वल प्रेसिडेंस, तो क्या कर लिया हमने, उसको पॉप करके पोस्ट फिक्स में ऐड कर दिया, एंड देन प्लस के साथ कंपेयर किया, प्लस लेस है, उसको पॉप नहीं करेंगे, तो यहां पर फिर पुश हो गया, प्लस डिवाइड ये हो गया। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट ब्रैकेट आ रहा है। देखो अभी ब्रैकेट जब आया तो व्हाट हैपेंड, ओपनिंग ब्रैकेट के लिए बोला था डायरेक्टली पुश हो जाएगा,
ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो डायरेक्टली हमें पुश कर देंगे एंड ये कंटेंट्स चेंज नहीं होगा, ये कंटेंट्स जो है ऐसे रहेगा स्टैक कंटेंट्स। नेक्स्ट इज सी, प्लस आ रहा है, नहीं नेक्स्ट इज जी आ रहा है, सॉरी जी आ रहा है। सो इट इज ऑल्सो ए ऑपरेंड। इफ इट इज ऑपरेंड व्हाट हैपन, स्टैक कंटेंट्स सेम है, प्लस डिवाइड देन ओपनिंग ब्रैकेट, देन जी हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर पोस्ट पिक्स में, बिकॉज इट इज ऑपरेंड। $C into D minus E F divide G. Okay. ओके, तो नाउ सी हमारे पास क्या है, अभी जी आ गया था। जब जी आ गया था स्टैक में था प्लस डिवाइड एंड ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, और स्टार ये पोस्ट पिक्स क्या है, ए बी $C इंटू डी माइनस ई एफ EF डिवाइड देन जी, जी डायरेक्टली ऐड हो गया। अभी देखो, अभी प्लस आ गया। ओके, प्लस जो दिया है क्या है, टॉप एलिमेंट से तो कंपेयर करेंगे। सो टॉप एलिमेंट है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, कुछ कंपेयर करने के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, प्लस डिवाइड ब्रैकेट, उसके बाद प्लस। बिकॉज ब्रैकेट का क्या रहता है, एक अलग ऑपरेशन, मैंने उसका प्रेसिडेंस ज्यादा रहता है, इसीलिए हम ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको पहले इवैल्यूएट होना चाहिए। तो इसलिए देखो, ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस ये ऐड हो गया, उसके बाद जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वाला बाद में होगा। तो सी हियर, तो प्लस ऐड हो गया। सो अब पोस्ट पिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, पोस्ट पिक्स सेम एज लाइक जो है ऐसे है। नेक्स्ट जब एज आएगा, then star contents is like this, no changes, plus divide bracket plus, then H is what, directly add into the postfix, so AB $C into D minus C into D minus EF डिवाइड G देन H आकर ऐड हो गया। अभी देखो, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आया, देन व्हाट हैपेंड, वी पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक अप टू द ओपनिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट तक एक ही प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, पॉप कर देंगे। इसको हम जो एक ही प्लस है इसको पॉप करेंगे और ऐड इनटू द पोस्ट पिक्स में ऐड कर देंगे। दैट मींस what is the postfix here, AB into C into D minus EF divide GH plus, डायरेक्टली postfix में ऐड किया। नाउ स्टैक में एलिमेंट क्या है, स्टैक में प्लस है और डिवाइड है, क्योंकि वी हैव टू पॉप द एलिमेंट अप टू द ओपनिंग ब्रैकेट, we have to pop the element up to the opening bracket. Okay, now see, all the element are finished, अब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो स्टैक में एलिमेंट बचा है, जस्ट पॉप इट एंड ऐड इनटू द पोस्टफिक्स। जो भी बचा है जस्ट पॉप इट एंड ऐड इनटू द पोस्टफिक्स, देन वी फाइंड द फाइनल रिजल्ट। Whatever the element in the stack are there, just pop it and add into the postfix,
then we find the final result. See here, what is the final result? So whatever the element are there here, divide and plus, sorry, plus and divide, but top element क्या है? Stack is like this, means top element is divide है, तो first divide को pop करेंगे and add करेंगे, that means our A B $C into D minus E F divide G H plus, then divide, then plus को हम पॉप किए, ऐड किए, डिवाइड प्लस. ओके, नाउ स्टैक इज एम्प्टी. जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, जो जो एलिमेंट है पॉप करेंगे एंड ऐड कर देंगे पोस्टफिक्स में. So that is your postfix expression of a particular infix expression. That is AB $C into D minus EF, then divide GS plus divide plus. Clear or doubt? Tell me. Yes, sir. Other student? Clear? Okay. So this type of the question आर्ट्स इन योर एग्जाम. देखो छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, यदि वो 2 मार्क 4 मार्क के लिए, मगर यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो 8 मार्क पक्का है. 8 मार्क और 5 मार्क, मैक्सिमम 5 मार्क आता है. और 5 मार्क यदि 2 क्वेश्चन है ताले ठीक है, वो 8 मार्क हो सकता है. मैंने एक इक्वेशन, हाँ इक्वेशन दिया होगा, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स. हाँ निखिल. तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? हाँ, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. कोड कैसे लिखना है, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. इम्प्लीमेंट करेंगे इन द लैब क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, नेक्स्ट लैब में फर्स्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम ये वाला इम्प्लीमेंट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट ए इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. मगर कोड थोड़ा बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा और बड़ा भी है, तो आई विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट, डोंट वरी, इन द लैब क्लास. Okay, sir. So see one things here, a example is there. ये prefix वाला मैं कल बोल दूंगा. Here some question are there. Okay, convert the infix to postfix expression. आज जो पढ़ा है मैंने infix to postfix, so please try it using the stack यूज करके करना है. Okay, मैं शेयर कर दूंगा, तो प्लीज ट्राई. और ये जो है इवैल्यूएशन, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इवैल्यूएशन वाला को. ये खाली जो क्वेश्चन है, conversion of the infix expression to postfix expression using stack. So please try it. Let's tell whatever the doubt is there in the next class we discuss. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सर पीपीटी सेंड कर दीजिएगा सर. हाँ पीपीटी कर दूंगा, पीपीटी कर. Okay, sir. ये Thank you. अपडेटेड पीपीटी, प्रीवियस जो था इसमें ऐड हुआ है, तो ये वाला अपडेटेड है. हाँ, सेंड कर दो. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू. अच्छा रंजीत, हेलो रंजीत, चला गया? Excuse me, sir. नहीं, रंजीत को बुला रहा था, वो लेफ्ट हो गया क्या? सर. हाँ गुरु सर. हाँ, व्हाट हैपेंड? सर हम वो अटेंडेंस देना भूल गए थे. आज का ना, किस कौन सा क्लास का? आज का सर. मतलब मैं था पूरा क्लास में अवेलेबल, लेकिन वो मैं उधर ध्यान नहीं दिया कि आप क्लासरूम में डाल ठीक है. दिया. हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा कंसीडर कर दूंगा. हाँ ठीक है, मगर बाकी सबका नहीं, जिसका क्लास ओके में. हाँ. ओके सर, क्योंकि मैं पूरा क्लास में प्रेजेंट था इसीलिए. हाँ मैं देखा हूँ तुम्हें. हाँ ठीक. ओके सर, थैंक यू सर. मगर एक अभी यदि नहीं दिए हो, एक प्रेजेंट दे दो. प्रेजेंट एक क्लिक कर दो, मैं देख दूंगा, वो लेट को कंसीडर कर दो. हाँ सर, कर दिया उसमें, डन कर दिया मैं उसमें. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. थैंक